Good morning, all the boys and girls of class 9th. This is our last. This is our last topics. I think 3 to 4. That means what? From chapter what? Chapter 5, structure of atom. Okay. After little bit discussion, that means what? Within 2 to 3 topic we have to finish. I will finish this chapter. Okay. I will finish this chapter. Okay. So without wasting your time, we will start. I think we should start. The topic is that valence electron. Last class we were discussing about how we will what electronic configuration. Last class we were discussing about electronic configuration, how we will divide number of electrons in a different cell of an element. Last class we were discussing about how we can distribute the number of electrons in a different cell. ओके लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैसे भी किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैसे किसी अलग अलग सेल्स में उसको डिवाइड करेंगे. ओके लास्ट क्लास हमने देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड व्हाट आर द ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ दैट पार्टिकुलर एटम्स. ओके पार्टिकुलर एटम्स हमने देखा था कि किसी भी एटम्स का जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या होगा. सपोज दैट कि सोडियम Na. तो 11 is what atomic number. 11 is that ATOMI atomic number. As we know that atomic number is denoted by Z. Okay, atomic number is denoted by Z. So as we also know that Z should be equal to E, this will be equal to P. So Z should be equal to what? Number of electrons, and this will be equal to what? Number of protons. Okay, तो मान लेते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा. तो total number of electrons is what? 11. ठीक है, total number of electrons, ELECTRO, electrons equal to protons. नहीं तो as we know that कि in an atom. अब suppose that ये क्या न्यूक्लियस NuCl न्यूक्लियस. ओके एट दैट प्लेस यहाँ पे क्या होता है P+N होता है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है इसका जो आउटर ये जो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस जो पोर्सन जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पोर्सन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है इट रिवॉल्व्स. ओके ये क्या करता है इस पर चक्कर लगाता है. सपोज दैट कि अब कितना 11 इलेक्ट्रॉन्स है. Okay, so we have to distribute 11 electrons in a different cell. Suppose that it's a K, it's a L, or it's a M. Generally, it's a 1, it's a 2, or it's a 3. As per the rule, rule? Board body scheme के according board. That means as per the rule, that means this scheme. Okay, that means what we have to follow this formula 2n square. कि number of electrons को हम distribute करेंगे किसी भी ऑर्बिट्स में तो किसके अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर. इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे कि हम लोग न्यूक्लियस से आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे. सपोज दैट n तो पहले कितना आ जाएगा इट्स अ 2, इट्स अ 8, इट्स अ 1. तो इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप हम लोग देखते थे दैट मीन्स इट्स अ P+N. ये फर्स्ट ऑर्बिट नहीं इट्स अ 2 इलेक्ट्रॉन. ओके इट्स अ देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन. इट्स अ सेकेंड ऑर्बिट देयर इज 8 इलेक्ट्रॉन. There is 8 electron and it's the third orbit there is 1 electron. It's a geometrical shape of the a sodium atom. तो बेसिकली क्या वो geometrical representation है, geometric representation of the atomic structure. Okay, in last class we have discussed all these things. Okay, so now we will start our next topic is that valence electron. What is valence electron? So first of all we have to define that कि the electrons present in outermost cell. That means जो electron किसी भी atoms का elements का outermost orbit में present रहता है. Last class we also we were discussing about ये जो ऑर्बिट है दैट मीन्स कि KLMN फ्रॉम द न्यूक्लियस से जब हम काउंट करते हैं KLM1 या 1 2 3 4. ओके तो दिस वन दैट मीन्स ये जो M है तो M फॉर सोडियम एटम इट्स अ आउटरमोस्ट ऑर्बिट OUTERMOST आउटरमोस्ट ऑर्बिट. दैट मीन्स M जो है सोडियम एटम्स के लिए क्या है आउटरमोस्ट ऑर्बिट है और आउटर ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है ये 1 इलेक्ट्रॉन है ELECTRON इलेक्ट्रॉन. तो M जो क्या आउटरमोस्ट ऑर्बिट है किसके लिए फॉर सोडियम एलिमेंट एंड 1 इज द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट. तो क्या कह रहा है द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम are called valence electron. That means outermost orbit में जो भी electrons present होगा किसी भी elements का outermost orbit में जो number of electrons present होगा वो कहलाएगा valence electron. That means कि the electron ये जो electron है it M and M is the outermost orbit या फिर outermost cell orbit or SHELL or cell. This one is known as valence VALENC valence
electron, electron. This one is known as valence electron. Valence electron and outermost cells called valence cell. That means जो outermost cell है, अब जो ये outermost cell है, that means ये M, तो M क्या कहलाएगा? outermost cell, outermost outermost cell, outermost cell, shell, cell. It is known as outermost cell. Okay, it is outermost cell. Okay, so M is known as outermost cell, and the electrons present in M, is known as valence electron. Okay, it is known as valence electron. Okay, the next point is that significance of valence electron. That means what are the significance of valence electron? That means what, किसी भी एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे व्हाट आर द व्हाट, कि हम लोग क्या क्या चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. The significance of valence electrons. Okay, कि the valence electrons of an atom are responsible for chemical properties. That means कि किसी भी एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, वो डिपेंड करता है किस पे, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब क्या हो गया, कि सपोज दैट कि ये नेचर ऑफ द एलिमेंट्स भी डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वी कैन डिसाइड द नेचर ऑफ द एलिमेंट्स. दैट मीन्स व्हाट, कि जो एलिमेंट्स है वो गैसेस होगा, या फिर लिक्विड होगा, या फिर सॉलिड्स होगा, या फिर मेटल होगा, या फिर नॉन मेटल होगा. ओके, कि दैट मीन्स व्हाट, कि ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन. ओके, तो उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करता है किसका, उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे. एंड हम लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कि द एलिमेंट्स आर व्हाट, कि लिक्विड, सॉलिड और गैसेस, या मे बी द एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स आर what, the elements are metal or non-metal. The elements are non-metal or metal or non-metal. Another point is that कि the valence electrons determine the combining capacity. That means what, कि valence electron क्या determine करता है, combining capacity of the valency of an atom. Combining capacity of the atom. That means what, किसी भी chemical reaction में जब elements participate करेगा at that case, कि कितना number of electrons वो donate कर सकता है, या फिर कितना number of electrons वो accept कर सकता है. Okay, कि third point is that कि elements having the same number of valence electron, the elements having the same number of electrons, their atoms possess similar chemical properties. That means what, कि जो भी एलिमेंट्स के outermost orbit में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम प्रेजेंट है एट दियर outermost orbit, that means what, they have similar chemical properties. एग्जांपल बोल सकते लिथियम, इसका outermost orbit में दिया 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, इट्स outermost orbit में कितना दिया 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, सोडियम ऑल्सो इसका कितना 1 सोडियम. एंड लास्ट वन इज द पोटासियम, POTASSIUM, पोटासियम. ये outermost orbit में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, OUTER, outermost orbit, ORBIT orbit. That means what, it's a valence electron, VALENCE, valence electron, ELECTRO, and it's a valence electron. So that means they have, इसके पास क्या होगा, similar chemical properties. In sodium, lithium and potassium, they have similar chemical properties. Okay, elements have, अब सपोज दैट कि दे हैव डिफरेंट, अब सपोज दैट कि outermost orbit, ये जो outermost orbit है एट दैट प्लेस, कि सपोज दैट कि देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उस एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, कंप्लीटली डिफरेंट होगा. ओके, क्या होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा. क्या होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट होगा. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके, कि आप सपोज दैट कि दे हैव व्हाट, सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर सिमिलर valence electrons, same number of valence electron. Okay, in their, okay, the atoms are, that means जो भी atoms होगा उसका जो chemical properties होगा वो क्या होगा, सारा का सारा सेम होगा. फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम, दे हैव व्हाट, इसके जो outermost orbit में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 1 and 1. दैट मीन्स व्हाट, इस तीनों एलिमेंट्स का क्या होगा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, दे आर सिमिलर. ओके, इसका क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सिमिलर होगा. अब सपोज दैट कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट दैट ऑर्बिट, दैट मीन्स outermost ऑर्बिट में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है, दैट मीन्स व्हाट, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, दैट मीन्स कंप्लीटली डिफरेंट होगा. तो कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट. अब कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट क्या हो जाएगा, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं. जय कि नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट कि आइसोटॉप्स. ओके,
another topic is that ki isotopes. As we know that by the definition, the isotopes atoms of the same element. That means what? Ki atoms of the same elements having the same atomic number but different mass number या atomic mass are called isotopes of that element. That means what? कि isotopes किसको कहेंगे? कि atoms of the same element. Atoms of the same element having the same atomic number. That means what? That element have the same atomic number but different atomic mass or mass number are called isotopes of that element. That means what? कि atoms of the same element. किसी भी एलिमेंट्स का जो एटम्स होगा दैट मींस व्हाट सेम होगा एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट. एटम्स क्या होगा? सेम एलिमेंट दैट मीन हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर. अब क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बस एटॉमिक मास क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए. अगर ऐसा होता है दैट मींस व्हाट कि वो क्या कहलाएगा? आइसोटॉप्स कहलाएगा. सपोज दैट कि आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स. दैट मींस व्हाट कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट्स है दैट मींस व्हाट ये क्या है? इसका 3 आइसोटॉप्स होता है कि हैविंग मास नंबर दैट मींस व्हाट इसका जो मास नंबर है हाइड्रोजन का 3 एलिमेंट्स जो मास नंबर है 1 2 1 1 1 2 एंड 1 3. दैट मींस व्हाट ये जो 3 आइसोटॉप्स है 1 1 1 2 और 1 3. ओके हैज इसका जो एटॉमिक मास है दैट मींस या फिर मास नंबर इज 1 2 3 बट एटॉमिक नंबर इज 1. एटॉमिक मास इसका क्या है? 1 2 3. एटॉमिक मास इज डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 1. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट्स अ आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स मतलब क्या? एलिमेंट सेम होगा बट एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स क्या होगा? सेम होगा. एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा बट एटॉमिक मास क्या होगा? डिफरेंट होगा. जो भी एलिमेंट्स उस कैटेगरी में आएगा वो क्या कहलाएगा? आइसोटॉप्स कहलाएगा. क्या कहलाएगा? आइसोटॉप्स कहलाएगा. सपोज दैट कि हाइड्रोजन, अब सपोज दैट हाइड्रोजन एटम्स, सपोज दैट कि हाइड्रोजन एटम पहला जो है जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोटीनियम बोलते हैं इसको. हाइड्रोजन इज नोन एज प्रोटीनियम. जैसे कि इट्स है इसमें क्या होता है कि 1 प्रोटॉन, इसमें न्यूट्रॉन्स क्या होता है? 0 होता है. क्या होता है? न्यूट्रॉन्स इसमें 0 होता है. दैट मीन्स व्हाट ये जो पॉइंट है एक यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स. कितना हो जाएगा? 8. एक इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स व्हाट ये क्या हो जाएगा? ATO एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो कितना हो जागा? 1 हो जाएगा. और ये क्या हो गया? NuClEUS न्यूक्लियस हो जाएगा. दैट मीन्स ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन. ORDINARY ऑर्डिनरी HYDRO हाइड्रोजन. और बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीनियम. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीनियम. प्रोटियम इसको बोलते हैं प्रोटियम. ओके प्रोटियम इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम. It's the isotopes of hydrogen. Another one is कि 1 proton and 1 neutron. इसमें क्या हो जाएगा? 1 proton and 1 neutron. It's a nucleus and it's a, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. दैट मीन व्हाट यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 1 2. एटॉमिक नंबर 1 इज, एटॉमिक मास इज 2. इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम कि हैवी हाइड्रोजन. इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 2. इसको बोलते हैं DEUTERIUM ड्यूटेरियम. इसको क्या बोलेंगे? ड्यूटेरियम, जिसको हम लोग हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं. HEVY हेवी हाइड्रोजन. HYDROGEN इट्स अ हेवी हाइड्रोजन. जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम. इसको क्या बोलेंगे? ड्यूटेरियम. इट्स अ हेवी हाइड्रोजन. अनदर वन इज दैट ट्राइथियम जिसको हम लोग रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं. दैट मीन्स व्हाट इसमें क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा? 2 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. दैट मीन्स व्हाट 1 इलेक्ट्रॉन लाइक दैट. इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइटियम. दैट मीन्स व्हाट कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 3. इसको बोलते हैं व्हाट? रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन. RADIOACTIV रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन. HYDROGEN रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन. Okay, radioactive hydrogen. So these are the basic description about the isotopes. Okay, hydrogen has 3 isotopes. First one is the atomic mass is 1. Sorry, atomic number is 1. Atomic mass is also 1. इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम. Okay, इसको हम लोग बोलते हैं ordinary hydrogen. Okay, another one is that another isotope is that it's a deuterium. It's a deuterium जिसको हम लोग बोलते हैं heavy hydrogen. That means what? Atomic number 1 and atomic mass is 2. And third one is the radioactive hydrogen जिसको बोलते हैं हम लोग tritium. That means what? Atomic number 1 is and atomic mass is 3. Atomic mass is 3. Okay. And I think maybe 1 or 2 एक से 2 टॉपिक बचा है. I will complete this topic in our next class. Okay.
If you have any questions, any suggestions, you have to text me on your WhatsApp group. And thank you for watching this video and have a nice day.